ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਅਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਓ ਦਸਤਗੀਰ, ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਟਨਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਲ ਮਾਨੁਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਔਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ, ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਖਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੈ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਹਉ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੈ ਤਿਨ ਜਾਉ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੀਛੇ ਲਾਗ ਫਿਰਾਉ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕਾ ਚਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ?
सिख जगत दे विच कोई भी सिंह जां सिंघणी अपना गृहस्थ जीवन गुरु रामदास जी की कृपा तो बिना आरंभ नहीं कर सकते। क्यों? सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी विच जिहड़ियां लावां ने, सूही महला चौथा, वो भी सतगुरु गुरु रामदास जी दी महाराज जी दियां ने। असी कदी गुरु रामदास जी दियां बख्शिशां नूं अपने जीवन विचों वांझा नहीं कर सकते, पर बदकिस्मती साडी ये है कि गुरु रामदास जी का जीवन जां गुरु रामदास जी की कमाई एक सिख के जीवन लिए कितनी लोड़ींदी है, उसनूं असी अपने ध्यान विचों बेध्याना करी बैठे हैं। सिख जगत दे विच सब तो वड्डा कारज है सिख का जन्म होना, जिहड़ा सिख रहत मर्यादा ते जिक्र है। उस तो बाद सिख की जिहड़ी दूसरी राहो रीत इस जगत विच है, भावें बच्चा होए ते भावें बच्ची होए, वो है उहदा नाम रखना। अजकल सिख जगत विच जिन्ने भी नाम रखे जाते हैं असी अपनी मर्जी नाल रख देंदे है, पर मैनू खिमा बख्शिओ, सिख जगत की सिख राहो रीत सिख रहत मर्यादा की ये परंपरा है, बच्चा जां बच्ची होए सब तो पहला जे माँ दुरुस्त है बच्चा दुरुस्त है, कोई भी वहम भरम किए बिना सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी आके कड़ा प्रसाद की देग बना के अरदास करो, तो जिहड़ा हुक्मनामा आए उस अखर तो अपने बच्चे का नाम रखो। क्यों? ताकि साढ़े बच्चों के नाम के उत्ते भी गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द का पहरा होवे। हुण पहरा की होंदा है? तुसी कई इलाके अजमेर विच देखोगे जिन्हां सोसाइटियां दे बाहर तुसी चौकीदार बिठाए हुए ने, कई इलाकों के विच तुसी देखोगे सिक्योरिटी गार्ड या कई बिल्डिंग्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे ने, उन्हां दा उत्थे स्थान है, तो उन्हां तो पुछे बिना उत्थे एंट्री किए बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि गुरु का शब्द हर एक सिख हर एक मनुख लई विकारां तो रोकण लई चौंकी है। जिस तरह कोई चौकीदार कोई शैतानी जां कोई हरारत करने वाले नूं अंदर नहीं जाण देंदा उस बिल्डिंग दे, जां जिहदी जान पछाण नहीं होंदी, इसी तरीके दे नाल गुरु का शब्द रखवारे चौंकी चौगिरद हमारे। गुरु का शब्द चौंकी है, चौगिरदा है। असी कहने आ शब्द बाणी का अर्थ नहीं पता, सानू बाणी समझ नहीं आती, बाणी की सोझी नहीं मिलती, पर गुरु के सिखो बाणी अपने आप दे विच ऐसी कला है, जे बाणी का आसरा लोगे तो बाणी अपने आप दे विच गुरु अर्जुन साहब कहते ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। इहदे विच अर्थ जां इहदे विच समझ दी कोई गल थोड़ी है, ये तो स्पष्ट है। जिवें चौकीदार बाहर बैठा है अंदर किसी नूं नहीं आण देगा पूछे बिना, इस तरह गुरु के शब्द का आसरा लैण वाला, गुरु के मार्ग ते तुरन वाला, उन्होंने भावें सोझी है जां नहीं है, गुरु के शब्द का आसरा लैण वाला कभी भी गुरु के शब्द तो वांझे होके अपने ओजड़ वाले राय नहीं पैंदा, क्योंकि विकार उहदे उत्ते हला नहीं कर सकते। और इस बचन नूं इसलिए क्या है क्योंकि गुरु रामदास जी का बचन ऐसा ऐसा बुलंद है कुल संसार विच। जे भट्ट साहबान कहते जे तुसी गुरु रामदास जी नूं चेते करोगे, गुरु रामदास तुहानूं पहलां धन ते दौलत दे अंबार देणगे। पहली गल सुनियो, हुण ये ना सोचियो कि इहदे विच धन दौलत माया कित्थों आ गई। तुसी इतिहास पढ़ो सतगुरु गुरु रामदास जी का। साडे विच अत अजीज़ इस पावन स्थान दे जां असीं कहिए अजमेर जां राजस्थान की धरती दे सारी जिम्मेवारी उठाउण वाले मेरे अत सत्कारयोग DIG साहब सरदार रुपिंदर सिंह जी भी, क्योंकि संगत विच सारे बराबर ने, पर सतगुरु जी की बख्शिश इन्नी है कि दास नूं ये माण महसूस होंदा है कि DIG साहब का संग असी थोड़ा समा अमृतसर साहब की धरती ते इकट्ठा माणिया। और सिख इतिहास दे भी जाणू ने और सिख जगत दे नाल प्रेम रखण वाले भी ने। पहली बार जब दास मिलिया सच्ची मुच्ची गुरु रामदास जी नगरी च शुकराना किया सच्चे पातशाह जे इहो जे आगू होणगे, इहो जे सांभण वाले होणगे, फिर सानू कोई खतरा नहीं। उन्होंने जियों आया नूं सारी कमेटी वालों सच ये है धन गुरु रामदास जी के बाबत भट्ट जी कहते हैं जिहड़ा गुरु के शब्द का आसरा लैंदा है। गुरु रामदास महाराज जी ने अमृतसर शहर वसाया, दिचै पूरब देवना जिसकी वस्त तिसै घर आवे। ये जिक्र किया भाई गुरदास जी ने। अगला बचन कहते पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। गुरु रामदास जी ने 52
ਕਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, IG ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਲਾ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੁਰਾ ਹੈ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਤਰਖਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 52। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੈਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੈਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉੱਥੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਜੰਗਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਇੱਥੇ 52 ਕਿਰਤਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀ ਦਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕੁੰਠ ਮਾਨੈ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਤੇ ਅੰਨ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਧਨ ਦਾ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆਪ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਤਨਹਿ ਧਨ, ਧਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਛ ਭਾਵ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। 4 ਛਿੱਲੜ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਹੈ ਜਿਨਕੀਨੀ 12 ਬਾਟ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾਪਵੀਤ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਬਾਬਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਰਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੋਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ?
ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤ, ਤਪੀ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ। ਫਵਾਇਦੁਲ ਫਵਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਦੇਹਲਵੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਖ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਓਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੂਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤਿਹ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਹੁਣ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ ਨੇਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ? ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਦਮੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਲੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਛਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੂਣ ਪਾ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਵਟਤ ਹੋਈ, 1 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆ ਕੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗਏ,
कहते तेरा नाम की है? कहते जी सोमा। कहते किन्ने वट्टे? कहते जी अज इन्ने वट्टे। महाराज कहते लिया इत्थे रख। गल सुनियो इस गल नूं, तैयारी देखो गुरु रामदास किवें कर रहे हैं। एक एक बचन गुरु रामदास जी का इसलिए कमाउण वाला है। इस धरती ते अरबां खरबांपति भी सुखी नहीं ने, पर जे थोड़ा भी है गुरु रामदास जी की बरकतां वरतदियां होण ते तुहाडे वर्गा कोई सुखी नहीं हो सकता। इस गल नूं सदा याद रखियो। जे गुरु अर्जुन साहब जी कहते बिना संतोख नहीं को राज है, राज संतोख तो बिना नहीं है। तो संतोख का दाता कौन है? संतोख का दाता गुरु रामदास है। ताइयों तुसी दरबार साहब जब वड़दे हो, भरावां वाले ढाबे सब तो पहला स्थान तुसी दर्शन करते हो, उस स्थान का नाम पता की है? गुरुद्वारा संतोख सर साहब। संतोख सर बनाउण वाला गुरु रामदास। तुसी गुरु रामदास जी की बख्शिशा तो बिना किवें तुर सकते हो दरबार साहब की धरती ते? पहला तुहाडे अंदर संतोख पैदा होएगा तां गुरु दे दीदार होणगे। सतगुरु गुरु रामदास जी ने कहा लिया भाई जिन्ना वटिया रख। उन्हें तली ते रख दिता। की करे मालक गुरु रामदास ने इस थां दे। कहना मैं तो कल दा आया तो राती घर गया तो सुता नहीं। कखां की कुली बनाई, उस वेले रहण दे पक्के प्रबंध नहीं सी। कखां की कुली बना के उथे सौण लगा ना, मन दे अंदर ऐसा सूल कंडा चुभया कि आया तो सां पैसे कमाउण, पर होया कि सारी मजूरी की 2 दिनों की कमाई सारी गुरु रामदास लै गए, मेरा बनेगा की? ये ख्याल आया। बड़ा चिंतित होया, कहते होएगा कि? पर सवेर वास्ते उहदे कोल घुंगड़ियां सी। सारी रात चिंता च लंघाई, बेध्याना ज बिल्कुल उहदे मन दे विच उनींदरा जा अखां विच, सुता नहीं। सवेरे उठ के फिर बेचना शुरू कीतियां घुंगड़ियां। चिंतित सी ना कि अज भी कमाया कि किथे शामी आके गुरु रामदास लै ना जाण, कि कल दा ते सारा लै गए, होएगा कि? कहते शाम पैण लगी ना, ज्यों ज्यों शाम ढली उहदा मन भी ढलना शुरू हो गया। सुनियो इस गल नूं, जिवें जिवें दिन ढलदा जा रहा, शाम पैंदी जा रही है, शाम ढलदी जा रही है, रात होंदी जा रही है, इहदा मन ढलना शुरू हो गया। इहदे मन 'च ख्याल आया, सोम्या इत्थे आया तो गर्व करन लग गया पैसिਆਂ ਦਾ, कि इत्थे आया कि मैं पैसे कमाए तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह लै गए। पर सोमे गल तो सच्ची है, जे इत्थे 2 दिन होर ना आउंदा ते जिथे तू रहिंदा सी उत्थे तू मंगता बन जांदा। सुनियो इस गल नूं, सोमा अपने मन नाल गल करदा, जे इत्थे ना आउंदा ते सोम्या तू मंग रहा हुंदा दर दर ते। पर देख तैनूं सोम्या गुरु रामदास ने मंगते तो दाता बनाता। कल नूं मैं मंगदा हुंदा जिथे हुंदा, इत्थे आके सतगुरु ने मैनूं देण जोगा बना छोड़िया। मन किवें ढलिया? जद मन ढलिया ना, गुरु रामदास जी अगले दिन भी आए। महाराज कहते किन्ना वटिया? कहते जी 3 रुपए। महाराज कहते लो जी महाराज, खिड़े मथे दिता। अगले दिन फिर सोमा आया, फिर उन्हें घुंगड़ियां लगाइयां, जिन्ने पैसे वटत बड़ी हुई। अगले दिन ना जद ये है परख दी घड़ी, आखिरी दिन उन्हें 5 रुपए वटे। जिस दिन उदा पूरन हुण जे भट्ट जी कहते जाम गुरु है वल धन है क्या गारव दीजै, ये एक तुक है गुरु रामदास जी दे लई, और यदी विचार कई घंटियां दी है। अज सानू धन दा इन्ना गर्व है, सच्ची मुच्ची रह रब दा नाम, कि सतगुरु गुरु रामदास साडे ते कृपा। पर मैं एक गल आप संगतां नूं कहना चाहुंदा, साडे कोल जिन्नी मर्जी दौलत हो जाए, जिन्ना मर्जी सोहनी घर कोठी बना लो, तुसी सवारी रख लो, पर गुरु रामदास जी का वर्गा घर किसी का हो नहीं सकता। ये याद रखियो, असी अपना चेता रखिए, गुरु रामदास जी दे सिख हाँ। गुरु रामदास जी शामी आए, कहते सोम्या किन्ना वटिया है? कहता जी 5 रुपए। महाराज कहन लगे लिया दे, इन्हें नूं भज के आया, महाराज जी अज 5 वटे ने, अज तुसी सेवा लै लो। तो गुरु रामदास जी कहते क्यों? कहते महाराज कल भी लई, परसों भी लई, अज। महाराज कहते कल तो मंग के लई सी, हजे तो मंगने सी। कहते नहीं सच्चे पातशाह तुसी लै लो, ये तुहाडे ने। महाराज कहते बस सोम्या आही तैयारी करवाउणी सी। जिस दिन दा तू इत्थे आया नाम भी जप रहा सैं, तू इत्थे आके किरत भी कर रहा सैं, पर तेरे अंदर वंड के छकण दी हजे रीत नहीं शुरू हुई सी। तेनू वंड के छकण, किरत करो नाम जपो ते वंड छको वाला जिहड़ा संकल्प सी ना वो तैयार कराना सी। जा सोम्या आ पैसे हुण तेरे ने, रख, दिन दुगनी रात चुगनी गुरु नानक साहब तरक्की करनगे। तेरा नाम की है? कहंदे जी सोमा। कहंदे तू अज तो बाद सोमा नहीं, सोमा गुरु का शाह वे परवाह, अज तो बाद गुरु का शाह है। रहिंदी धरती तक तेरियां कुलां दे विच नाम दे नाल शाह वजणगे।
तेरे घरां दे विच तूं घुंगणियां बेचियां ने, तेरे घरां दे विच धन दौलत की इन्नी बेशुमारता होएगी कि तूं दे दे के भी नहीं खत्म कर सकेंगा। कली एक साखी नहीं, जाम गुरु है बल आया धन का गर्व करन लग गया सी, तनह क्या गारव दीजै। गुरु रामदास जी सिख नूं बेशुमार दौलतां दा मालक बनाउंदे ने, पर कदी भी दौलत की मलकीयत नाल उहदे अंदर अहंकार पैदा नहीं होण दिंदे। ये गुरु रामदास जी का घर है। तुसी भाई आदम की साखी सुनी होएगी। भाई आदम उम्र का 60 सालों का हो गया सी, उहदी पत्नी भी तकरीबन 55 साल इतिहास जिक्र लिखदा है, पर उन्हां दे घर कोई पुत्र धी नहीं होया। उन्होंने इको एक आसरा लग्या कि हुण जे पुत्र धी होवे ना होवे, जिन्नी रहिंदी जिन्नी ढलदी उम्र है जाके गुरु रामदास जी के घर सेवा करिए। पर मन दे विच किथे फुरना सी, जे अगे अगे पीढ़ी तुर पैंदी ते बहुत भला हुंदा। किसी ने कहता तुसी गुरु रामदास जी के दर ते जाओ। उत्थे जाके शहर वसदा सी, सरोवर की सेवा हुंदी सी, ते उन्होंने भी एक कखां की कुली बना ली जिथे उन्होंने रिहाइश कर ली। ते उस आदम के मन च ख्याल आया कि मैं करां की। ते उहदी पत्नी कहंदी इस तरह करदे हैं कि इत्थे लकड़ां दी बड़ी लोड़ हुंदी है, लंगर सारा दिन बनते ने, इत्थे सारा सरोवर की सेवा हो रही है, इट्टां दे भट्ठे सब कुछ है, इस तरह करिए लकड़ां दा कारज करिए, असी लकड़ां वड्ढ के लिया के सेवा करिए। कहंदा ठीक है। पर उन्हें नेम की रखिया, उन्हें लकड़ां वड्ढणियां सारे दिन, ते सारा दिन जब थक जाना ना, थकण तो बाद उन्हें थोड़ियां लकड़ां होर वड्ढणियां, जिन्नी सेवा हो जानी उन्हें पंड बन लैनी, ਜਿਹੜੀਆਂ लकड़ां होर वड्ढणियां उन्हें दूजी पंड बना लेनी। रोज़ वो 2 पंडां चक के लियाए, एक पंड गुरु की सेवा वास्ते वो दे, ते जिहड़ी छोटी पंड बनाउंदा वो घरे रख लैंदा सी अपनी कखां दी कुली च। लगातार उन्हें कई महीने गुरु के लंगर लई लकड़ां वड्डियां, पर उहदा नेम सी भाई आदम दा, एक पंड वो गुरु के संगत लई सेवा लई लंगर लई, एक पंड वो घर रखदा सी। पोह दा महीना चढ़िया तो एक रात नूं बड़ा बरसात मींह, भारी मींह पिया अमृतसर ते। सारियां लकड़ां जिहड़ियां पईयां सन लंगर दियां जां बालण वास्ते, वो सारा बालण गिला हो गया। इत्थों तक गुरु के सिख जिहड़े उत्थे रिहाइश करते सन, वो ठुरन सारी रात, क्योंकि पोह सारी रात मींह पिया, अगला दिन भी ठंड, सूरज नहीं चढ़िया। उस दिन भाई आदम कहंदा भागवाने अज है असली सेवा की परख। तो कहंदी उहदी पत्नी कहंदी जिहड़ा भाई साहब पहलां कीती, तुसीं सरदार साहब पहलां सेवा कीती, उहदा कहंदे वो तो सेवा नहीं सी, वो सच्ची मुच्ची अहंकार नूं ही वड्ढ रहे सां असीं। वो लकड़ा नहीं सी वड्ढ रहे, वो अपने अहंकार। कहंदे हुण किहड़ी सेवा है? कहंदे देखो बालन सारा गिला हो गया है, जिहड़ा घर विच बालन पिया ना अज सारा कढ के लियाओ। भाई आदम ते उन्हां दी पत्नी ने सारा बालन कढिया, जिथे जिथे सिखां दे रिहाइश गाह सी ਉਹਦੇ बार-बार बालन जला दिता, तो सिख जिन्ने गुरु के सिख सन सारे अग सेकण लग गए। ठंड बड़ी सी, तो जिस वेले सतगुरु गुरु रामदास जी बाहर आए ना अमृतसर साहब की आ धरती, क्योंकि गुरु साहब की रिहाइश थी गुरु का महल, उथे बाहर आके देखा कि गुरु के सिख इन्नी ठंड में अग सेकते ने, लकड़ा है नहीं सन, बालन गिला सी, ये बालन कित्थों आ गया? कोई जपजी साहब की बाणी पढ़े, कोई दुआले अग दे बैठ के अग सेकते हुए कीर्तन करे, कोई गुरु गुरु जपे। महाराज प्रसन्न हो गए, लकड़ा कित्थों आईयां? सिखा ने कहा महाराज भाई आदम ने दित्तियां। सतगुरु जी कहते बुलाओ इनू, उन्होंने बुलाया गया। महाराज ने कहा भाई आदम जी साडे ते तुहाडी खुशी है, दसो की चाहिए? हुण अंदर संकल्प तो सी कि घर च औलाद नहीं है, पर नाल सिंगां नूं वेख के ना शर्म आ गई कि सिंह की कहणगे, इन्नी उम्र हो गई है, एडी उम्र हुण ढलदी है तो हुण भी अंदर भुख है। महाराज कहते मंग भाई आदम की चाहिए? वो गए वो झकदा झकदा कहते सतगुरु जी समझ नहीं आता की लवां। महाराज जान गए सन, जानी जान सन। महाराज कहते आदम जाओ घर, कल नूं आयो सलाह करके, तुहाडे ते साडी खुशी है, असीं तुहानूं बख्शिशां देना चाहुंदे हां। घर गया, पत्नी नूं दस्सिया, पत्नी कहंदी मंगिया क्यों नहीं? कहंदे मेरी हिम्मत नहीं पई। अगले दिन पत्नी, देखो गुरु तैयारी किवें कराउंदे है। असल दे विच गुरु ने दात ते उसी वेले दे देनी सी, गुरु जानी जान ने, पर दात दी तैयारी किस तरह कराउंदे है? गुरु कल्ले पुत्रां धीआं दी जां दौलत दी दात नहीं देंदे। गुरु रामदास सुनियो, जिथे पुत्रां धीआं दी दात देंदे है उत्थे सिੱਖੀ दी दात नाल देंदे है, ताकि घर दे विच आउण वाली पीढ़ी विगड़ ना जाए। जे गुरु रामदास धन की दात देंदे है तो भट्ट जी कहते धन दे नाल अहंकार नूं मारन की दात गुरु रामदास सच्चे पातशाह देंदे है। ये तुहानूं किसी दर तो नहीं मिलेगी।
इस धरती ते बड़े लोग वहीरां कत कत किथे कड़े ने, पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है सुख मांगत दुख आगल आवे। उहते जाउंदे सुख लैण वास्ते उही सुख नाल ही दुख बन जाते हैं, उही चीज़ां। पर गुरु रामदास जी का दर ऐसा है जिथे सुख दे नाल दात ते बख्शिश भी मिलती है कि वह सुख दुख विच प्रवृत्त ना होए। भाई आदम अगले दिन अपनी पत्नी नाल पहुंचे, महाराज कहते दसो हुण की चाहिदा। फिर पत्नी पता की कहती, सतगुरु जी दो चीज़ां लैण आए ने। महाराज कहते दसो, कहते पहली सिक्खी दे दो ते दूसरी घर विच औलाद की दात दे दो। आ है तैयारी गुरु रामदास की। आए औलाद वस्ते सन, पर तैयारी किवें होई राती। कहते सतगुरु जी पहला सिक्खी दे दो फिर औलाद दे दो। महाराज ने बचन किया सिक्खी नाल औलाद भी आएगी, घर विच पुत्र का जन्म होएगा, भगतू नाम रखियो। ये गल फिर अगे जाके गुरु रामदास जी के समय के जिन्ने सिख बने ने ना, उन्हां दी पीढ़ियां ने सिक्खी कमाई है। 7.5 साल गुरु रामदास जी गुरता गद्दी के मालक रहे ने, और जेड़े गुरु रामदास जी की नदरे इनायत दे बख्शिश दे पात्र बने ने, उन्हां दी पीढ़ी कदी गुरु तो मुनकर नहीं हुई। गुरु रामदास जी के समय के बने हुए सिख गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक शहादतां दे जाम पींदे ने, उन्हां दियां पुश्तां। इतिहास चलदा है सारा। भट्ट गुरु रामदास जी के समय, गुरु अमरदास जी के समय आए। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भट्ट कीरत जी वर्गियां ने शहादतां दे जाम पीते ने गुरु हरगोबिंद साहब जी की जंग विच। ये क्यों नहीं असी विचारते कि गुरु रामदास जी कल्ले धन ते दौलत देने वाले नहीं, पुत्रां धीआं दुध पुत की दात देने वाले नहीं। गुरु रामदास पहला सिक्खी सबर ते संतोख का सौमा ने, पर सानू संतोख दिसदा नहीं गुरु रामदास जी वाला, सानू सबर नहीं दिखदा। सिर ते टोकरा चक के गरम गरम घुंगड़ियां लै लो, करारियां घुंगड़ियां लै लो, ये गुरु रामदास जी के दिन सानू चेते नहीं आउंदे। सानू गोइंदवाल साहब की धरती ते कीती हुई घालना सेवा गुरु रामदास जी की नहीं दिसदी। सानू सतगुरु गुरु रामदास जी का समर्पण नहीं दिसदा। जिस दिन सतगुरु गुरु अमरदास जी ने त्रुट के आख्या ना, बाबा बुढ़ा भाई जेठे नूं इशनान करा के ते अज साडा चोला पवा के लियाओ, पढ़ो रामकली सद बाणी। धन गुरु अमरदास जी की उच्चारण की बाबा सुंदर ने कलम बंद की। सतगुर भाणै अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछै कोई रोवसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैज है मित बिगसै जिस मित की पैज भावै। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनाया। गुरु अमरदास जी कहते हुण साडा समा आ गया, कुछ चंद घंटियां दे विच असी इस देही दा ओला कर लेना। सारियां ने विराग कर लिया कि महाराज ये किवें, पर सतगुरु गुरु अमरदास जी ने कहा सिख जगत दे विच मरना भी रोना ते पिटण दा स्यापा दा घर नहीं होएगा, खिमा बख्शियो। ये गुरु अमरदास जी दे बचन ने। कहते इत्थे मरण कबूल होएगा, इत्थे मरण भी उस प्रभु दे दर ते उस प्रभु की दात ते भाणा होएगा। जे जन्म भी भाणा है तो मरण भी उहदा भाणा है। ये दोनों असी कह देने जी भाणा वरत गया, महाराज जी ने तो जन्म भी भाणा आख्या। जा तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। जन्म भी भाणा है इस घर दे विच ते मरण भी बराबर भाणा रखिया कि खुशी गमी दोनों एक है। इस करके ते धन गुरु रामदास जी ने कहा ना, जो नर दुख में वाहिगुरु गुरु रामदास जी का बचन है कि जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख देता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। दुख विच सुख मनाउण दा संकल्प किथे नहीं है, सिर्फ गुरु रामदास जी के घर का है। तो गुरु रामदास जी नूं इशनान करा के सोहना चोला पा के लियाए। तो गुरु अमरदास जी ने क्या रोना नहीं, कहते की करना है। अंत सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। कहते कीर्तन करना है। केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ये अर्थ विद्वाना ने बड़े वखरे वखरे तरीके नाल कीते ने, पर जे ये अर्थ अज दे संकल्प नाल वेखो ना गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों, केसों गोपाल का मतलब सोहने केसां वाला वाहिगुरु। केसों केसों कूकी है वो वाहिगुरु। गोपाल का मतलब धरती की प्रतिपालना करने वाला। पंडित इत्थे पंडित का तत्ता मुक्त है कि इत्थे बहुवचन आप संगतां नूं गुरु अमरदास जी पंडित कहते हैं। कहते उन्होंने इकट्ठा करियो सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है। जिन्हां दा मन टिक गया उन्हां दी संगत करियो। केसों गोपाल पंडित सदियों हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। गुरु के शब्द के अर्थ करियो। जिमें वेदां दे अर्थ पुराण ने ना, इत्थे पुराण का मतलब है गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दां दे अर्थ। शब्दां नूं खोलियो मन टिका मिलेगा। फिर पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल कि गुरु के सिख ने कोई कर्म कांड नहीं करना, बस गुरु की संगत विच जुड़ के गुरु के भाणे नूं मनना है। फिर अगला बचन किया
सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया। अज तो बाद गुरु अमरदास जी ने पूछा सिखा ने, महाराज फिर किदे चरणी लगिए? महाराज कहते जे साडी खुशी लैनी है अज तो बाद शरीर साडा नहीं होएगा, शरीर गुरु रामदास जी का होएगा, पर इन्हां दे अंदर गुरु नानक साहब की जोत वरतेगी। एक कला वरती, सब सिख पुत बंदप भाई रामदास पैरी पाया। उत्थे जिक्र किया रामदास सोडी तिलक दिया। केड़ा तिलक? बाहर दा तिलक दिता? कोई केसर दा तिलक दिता? नहीं, तिलक है गुर शब्द सच निशान जीओ। गुरु दी बाणी दा तिलक दिता गुरु रामदास जी नूं। ते जिस वेले गुरता गद्दी दी दात देती ना, मैं सिर्फ संकोच वे लफ्ज़ां च, उस वेले गुरु अमरदास जी ने कहा सी कि गुरु रामदास जी हुण तुसी इस दात दे मालक हो, कोई बचन तुसी भी सुनाओ हुण संगतां नूं। ते गुरु अमरदास जी दे सन्मुख गुरु रामदास जी ने बचन पता केड़ा उचारिया सी? गल च पल्ला पा के कहंदे आ है निमरता दे पुंज। एडी वड्डी दात दे मालक हो के पता की कह रहे ने? तुमरे गुण क्या कहाँ मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब बिसम हो जाए। तुसी कहंदे हो बोलो, मैं गुरु अमरदास जी गुरु बोलदा, मेरा रोम रोम अंदर विस्माद हो जाता है, मेरी तो जुबान बंद हो जाती है, मैं की बोलां। आह गुरु रामदास जी कहते हैं कि तुसी मैनू इन्नी वड्डी दात दा मालक बनाता जिहदे सिर ते माँ दा साया नहीं, पिता दा साया नहीं। घर विच नानी घुंगड़ियां उबाल के दिंदी है, नानी ये नहीं जानती कल नू इस बच्चे दा की होएगा, पर होनी जानती सी कल नू इसी रामदास नू धन गुरु अमरदास जी इस दात दा मालक बना देणगे। थड़े बनवाए ने 7 दिन बनवा के ढवाए ने। वड्डा जवाई रामा कहंदा मेरे तो नहीं बनदा, गुरु अमरदास जी तुसी बिरध हो गए हो। पर धन गुरु रामदास जी कहंदे ये इसलिए नहीं बनदा क्योंकि मेरी मत बौरी मैं राम विसारियो। इसलिए नहीं बनदा हम अवगुण भरे एक गुण नाही, इसलिए नहीं बनदा हम रुलते फिरते कोई आहे। गुरु रामदास जी ने गल च पल्ला पा के क्या कि सच्चे पातशाह मैं अनाथ सा, पर तुमरे गुण क्या कहाँ मेरे सतगुरा, जब गुर बोला है तब बिसम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै। केड़ा अपराध किया होएगा गुरु रामदास जी ने? अपराध साढ़े ने, पर साढ़े अपराधां नूं मुआफ़ी देण वास्ते सतगुरु जी अपने आप नूं अपराधी कह रहे हैं। फिर असी गुरु रामदास जी नूं चेते नहीं करते। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। गुरु अमरदास जी तू गुर पिता तू है गुर माता। जपो जी तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। भट्ट जी कहते एक बारी गुरु रामदास जी को आके ना मन करके गुरु रामदास जी के सन्मुख जा। गुरु ग्रंथ साहब गुरु रामदास जी ने कोई भेत ना रखियो, ये प्रतख गुनाह की दे है। भट्ट जी कहते बस एक बारी गुनाह मान लो कि असी गुनाहगार हाँ। जेड़ा गुरु रामदास जी को आके कह देगा असी गुनाहगार हाँ, गुरु रामदास उन्होंने अपने सीने नाल ला लेगा, उहदे सारे गुनाह बख्श देगा। तो फिर पहल कदमी साड़ी है, असी मन के राजी नहीं असी अवगुण कीते ने। तो गुरु रामदास जी कहते हैं कि तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कीड़ियां नूं थाप दिता। ये गुरु नानक साहब के घर की बरकत है। इस करके भट्ट जी कहते असी गुरु रामदास के दर्शन किए। तुसी दुध मंगण आओ, पुत मंगण आओ, तुसी धन दौलत मंगण आओ, पर दुनिया के लोगों किसी ऐसे थां ते ना चले जाओ जिथे तुहानू लगन के सुख मिल गए, पर वो सुख नहीं। जे तुहानू सुख मिलणगे कि गुरु रामदास जी के दर तो ही मिलणगे। क्यों? क्योंकि गुरु रामदास दात दे नाल दाते की बख्शिश भी देंदा है। ये गल याद रखियो, दात दे नाल दाते की बख्शिश। ओ कादी दात, दात प्यारी विसरिया दातार। ओ कादी दात कीते को मेरा समान है। मेरा दा मतलब मेरा नहीं, मेरा दा मतलब सुमेर पर्वत। जिहड़ा मिल गया उन्होंने पहाड़ कह दिता। करनहार तृण जाना, जिन्हें दिता है उन्होंने तिनका मान लिया। नहीं, जिस दिन गुरु रामदास जी के दर तो दात मिलती है, गुरु का सिख ये कहता है मैं ना ही कछ हो नहीं, किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। जिस दिन असी प्रकाश दिहाड़े मनाउंदे हैं ना,
ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਚਾਓ ਉਮਾ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਓ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਚਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ, ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਵੈਦ ਤੋਂ, ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਗੜਵੇ ਕੱਢ ਕੇ, 1000 ਘੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਘੱਲੋ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਿੱਝ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਤ ਤੇ ਕੁਰੈਤ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰੈਤ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਿਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਾਰ ਆਜ਼ਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੈ ਚਾਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ 4 ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾਤੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੀ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰਸਨਾ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਦਾ ਲਖ ਬਰੋ ਆਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, 10 ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਆਚਾਰ ਕੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਨ ਬਾ ਤਦਬੀਰੇ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੇ, ਅੱਗੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੂਲੋਂ पे आँच आए तो लड़ जाना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ
ना पेचीदा मूए ना रंजीदा तन जफरनामा, ना मेरे तन का एक वाल तू पट सकिया औरंगजेब, ते ना मेरे तन के उत्ते फट मार सकिया। क्यों? जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, जैसे काती 30-32 है 32 दंदा के अंदर जुबान, जैसे काती 30-32 है बिच रख है रसना मास रत केरी। कोई जाना मास काती कह किच हाथ है, कोई ये जानता जुबान की चलाकी है नहीं, सब वसगत है हर केरी। रखण वाला वो है। त्यों संत जना की नर निंदा करे, जे नर कोई बंदा बंदगी करने वाले की निंदा करन आ जाए, जिमें 32 दंदां च जुबान सलामत है, गुरु रामदास अपने सिख नूं 32,000 निंदकां दे विच भी सलामत रखता है। ये बख्शिशां ने। क्यों असी निंदा तो सड़ जाते हैं? एक तो गुरु रामदास जी कहते बुरा नहीं बोलना किसी का, ना सोचना। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, जाम गुरु होए वल ध्यान ज्ञान और ध्यान अनन पर, सच्चे ज्ञान ते ध्यान की प्राप्ति दे लई यतन करो। गुरु रामदास जी कहते हैं झूठा ज्ञान झूठी ये शौहरत ये वाला ध्यान छड़ दो। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चो कर, साखियात गुरु रामदास जी दी गुरु नानक साहब जी दी सिक्खियां जीवन बनाने वालियां ने, होर कोई जीवन नहीं बना सकता। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चो कर, पर किवें करिए? फिर भट्ट जी कहते एक काम करो, दिन रात बस गुरु गुरु जपी जाओ। तुरदे हो तां भी गुरु गुरु जपो, बैठे हो तां भी गुरु गुरु जपो, काम करदे हो तां भी गुरु गुरु जपो, ते सौण लगे हो ते तां भी गुरु गुरु जपो। इको एक तरीका है। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। तुरदियां फिरदियां सज्जा पैर रखो वाहे, खब्बा रखो गुरु। जो गुरु गुरु अहनिस जपै दिन रात। सतगुरु गुरु रामदास जी के बाबत भट्ट जी कहते गुरु रामदास जी नूं गुरु गुरु जपी जाओ। ये जपण नाल ही जिस तरह एक भांडे विच गंदा गंदेला पानी भरिया है, जे उहदे उत्ते साफ पानी की टूटी खोल दो ना, वो गंदेला बाहर हो जाता है, साफ भर जाता है। इवें उत्तों गुरु गुरु सुट्टी जाओ, जपी जाओ, अंदरों मैल निकलेगी। जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास भट्ट बेनत का है, जो गुरु नाम रिद मह धर है, सो जन्म मरण दोहूं ठहरा है। जन्म ते मरण कट्टण वाला गुरु रामदास है। अगला बचन सुनो गुरु रामदास जी के बाबत, कच्चो हो कंचन भयो, कच नूं सोना करन वाला गुरु रामदास जी का सिमरन है। कच हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो। कहते कन तो सुनो गुरु रामदास जी नूं, पर साडा ध्यान कित्थे है? गुरु रामदास जी का बचन है कंचन नारी में जियो लुबत है। समाप्ति हो गई है समा। कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया। ये गुरु रामदास जी का बचन है। साडा ध्यान किहड़े पासे है? दौलत वल, शौहरत वल, बाहर फोकी असी कहते हैं जी साड़ी तारीफ हो जाए, नहीं। महाराज कहते ये सुख नहीं देगा। कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया। गुरु रामदास जी का शब्द छड़ के, बाणी छड़ के मन होर पासे तुर पिया। हर प्रभ चितना आयो क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम यह नीच करम हर मेरे। कदी गुरु रामदास जी को खड़ के आखो तो सही सच्चे पातशाह नीच हाँ। तो गुरु रामदास जी ने की आख्या? भट्ट जी कहते राखो शरणाई, राखो शरणाई, जपो गुर रामदास। राखो शरणाई गुर रामदास, राखो शरणाई, जपो गुर राम। सारे जपो जी, सारे जपो गुर रामदास। जेड़ा गुरु की शरण में आउंदा है ना, कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो। गुरु गुटका खोलिया ना, भट्ट जी कहते गुरु रामदास जी का बचन सी, बाणी पढ़न लग्या एवें बस एवें नहीं पढ़ देनी, मुंडी जी हिलाई सिर हिलाया तो गुटका पाठ नहीं। शब्द पढ़ो, उन्नी आवाज़ से पढ़ो कि शब्द कन्ना दे नाल अंदर जाए, फिर मन टिकेगा। एवें बंदगी नहीं गुरु रामदास जी के घर की। यह है कच्चो कंचन भयो, कच कंचन हो जाएगा। शब्द गुर श्रवणै सुनियो, बिखते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो। एवें मूँह च ना बोली जाओ, बाणी उचारियो मूँह तो, बाणी बोलियो। कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो, बिखते अमृत होयो, अंदर जहर अमृत होएगा। जिहड़ा निंदा चुगली च पहलां गड़ुच सी मन, जिहड़ा ईरखा द्वैश च तात पराई च सी, वो हुण होएगा परका बुरा ना राखो चीत। वो कहेगा फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए। वो मन कहेगा कि सच्चे पातशाह जो तै मारन मुकियां तिना ना मारै घुम, अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम।
अपने निज घर विच मन टिकेगा। यह है बिख ते अमृत होयो, शब्द गुर श्रवणै सुनियो, बिख ते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो, लोहो हो लाल। जिस लोहे की कीमत नहीं ना मनूर है, वो भी महंगा हो जाएगा। नदर सतगुर जद धारै, पाहण माणक करै, ज्ञान गुर कहो विचारै। जिन्हां पत्थरां नूं लोकी ठेडे मारदे ने, उन्हां पत्थरां नूं लोकी सिर ते लाउणगे। समझदे हो, कीमत हो जाएगी। एवें तुसी ज्वैलर की दुकान 'च जाओ ना, बेशकीमती पत्थर उन्हें तिजोरियां 'च रखे होंदे है। ये गुरु रामदास कर दिंदा, जिहदी कीमत कोई नहीं। गुरु रामदास उन्हूं पाहण माणक करै, ज्ञान गुर कहो विचारै। ते फिर काठो श्रीखंड सतगुरु कीओ। भाई आदम नूं कहा कि तेरे घर पुत्र होएगा, भगतू पैदा होया। भाई भगतू गुरु हरराय साहब के समय का सिख है। भाई भगतू गुरु हरराय साहब जी के दर्शन करने वास्ते कीरतपुर साहब की धरती पहुंचा। सारी रात सफ़र किया, कई दिनों तो बाद पहुंचा। सवेरे पहुंचा ना, भुख बड़ी लगी। कहता गुरु हरराय साहब के दीदार ते करने, इशनान पानी करके करांगे, पर भुख लगी है। रस्ते 'च एक देसी घ्यो का व्यापार करने वाला सी, संगत शाह। ये संगत सी, भाई संगती आ, जिन्हों भाई रूपा भाई फेरू भी कहिंदे सी। वो भाई फेरू ना गली गली घूम के घ्यो वेचदा सी। उन्हें अपने मोढे ते ना पीपे टंगे हुए घ्यो दे, ते अगों भाई पे फेरू नूं ना भाई भगतू रोक के कहंदा, जिहड़ा भाई आदम का पुत्र है, कहंदा मैनूं भुख बड़ी लगी है, थोड़ा जा घ्यो मैनूं छका दे ते मैं तैनूं पैसे कल दे दांगा। ते जिहड़ा भाई फेरू सी, वो भी गुरु के भै च रहण वाला सी। वो कहंदा कि मैं तो हजे देसी घ्यो लैके आया, हजे मैं घर जावांगा, मेरे को छाबा भी नहीं है, ना मेरे को तराजू है, मैं तैनूं दे किवें देवां? बिना तोले मैं किहड़ी कीमत लांगा? तां भी गुरु के घर तो मैं फिर बेमुख हो जाऊँगा जे मैं वध घट लै ले। तो फिर जिहड़ा भाई सी ना भगतू ने कहा, एक काम कर, मैनू ना कुप विच जिन्ना देसी घ्यो तू देना दे दे, घर जाके अपना पीपा तोलनी, जिन्ना घटेगा उहदे पैसे लै ली, घर जाके तू तोल ली। उन्हें कहा यह भी ठीक है। उन्हें 2-3 बुक भर के ना भाई भगतू के हाथ 'च रख दिता, तो भाई भगतू ने देसी घ्यो छकिया। उही भाई फेरू जद घर पीपे तोलन लगा, तो देसी घ्यो घटिया ही ना पिया, उहदे रंग उड़ गया कि मैं तो इन्ना देसी घ्यो 3 कुप भर के दे के आया, देसी घ्यो घटिया क्यों नहीं? भजया गया गुरु हरराय साहब के दरबार 'च, महाराज सच्चे पातशाह देसी घ्यो दिता, घटिया क्यों नहीं? कहते जिस सिख नूं दिता सी ना गुरु रामदास जी का वर है इस परिवार नूं, ये तो खाली हिरदियां नूं भर देणगे, जिथे भाई भगतू बैठणगे। कहते देसी घ्यो के पीपे की, तो ये तो दिलां नूं भर देंदे जिन्हां दे अंदर नाम नहीं हुंदा। ये गुरु रामदास जी दीयां बख्शिशां ने। भाई फेरू भाई भगतू नाल सिमरन करना शुरू किया। फिर क्यों? हर नाम रसिक पट जी कहते गुरु रामदास नाम दे रसीए ने। गोबिंद गुण गाहक, गोबिंद दे घर दे, वाहिगुरु दे घर दे गाहक ने। चाहक तत् समत सरे, तत् नूं प्यार करने वाले ते सब नूं इक्को नज़र नाल वेखण वाले ने। गुरु रामदास पापी नूं भी उसी नज़र नाल देखदे ते पुन्नी नूं भी उसी नज़र नाल देखदे। सारे सतगुरु जी बख्शिश कर देंदे। आप सारी संगत गुरु के दरबार विच मौजूद हो, क्योंकि मैं तो उड़ीक करदा सी शायद रागी साहिबान आउणगे, इस करके सो सतगुर बख्शिश करन। इत्थे समाप्ति है। ये बचन काठो श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दलिद्र तिनके गए, श्री सतगुर चरण जिन परसिया, सतगुरु चरण जिन परसिया, से पश प्रेत सुर नर भए। जिन्हें गुरु के दीदार किए ने, उहदा मन पशु बिरती तो सुर नल देवते वाली बिरती हो जाती है, तो देव बिरती ज्ञान वाली बिरती है। सतगुर बख्शिश करन। श्री गुरु रामदास जी का आप प्रकाश पुरब मना रहे हो, साढ़े जीवन तब्दील होण देखो। बस असी एक प्रण लईए, जे गुरु वाले नहीं आना फिर गुरु वाले बनिए। इस तो बिना साड़ी गल जिथे मर्जी चले जाइए ना, बस मन बनाइए गुरु अगे। असी कहते नहीं जी साढ़े तो सांभिया नहीं जाएगा, वो दुनिया के लोगों अमृत ने सानू सामना है, असी किवें गुरु की दात नूं साम सकते हैं? दात सानू सांभेगी। दात भारी है। गुरुमुख देख गुरु सुख पायो। श्री गुरु रामदास महाराज बख्शिश करन। सारियां घरां दे विच खुशियां बरकतां वरताउण। इन्नियां के विचारां करदियां बेअंत भुल्लां आप बख्श देना। श्री गुरु रामदास जी का, गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्नवाद। आप संगतां दा धन्नवाद। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी, जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन करन दे ये सुभाग बख्शे से। साडे जगजीत सिंह सोखी साहब मिल के मन बहुत प्रसन्न होया। वाकई एकेडमीशियंस ने, जिन्हां ने अकैडमी दे विच एडूकेशन विच इन्ना वड्डा योगदान पाया। 10,000 तो वध बच्चों नूं डॉक्टर बनाया। सतगुर की बड़ी बख्शिश है। हुण भी सेवावां दे रहे हैं। सारी प्रबंधक कमेटी, प्रधान साहब,
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।